she has also published a book of poems where she's glorifying the Lord, she's glorifying Srila Prabhupada and her Guru Maharaj. She is an international preacher. What is noteworthy is that she has given almost 10 lectures in Pakistan, which is unique in itself, apart from Australia and UK. And even in India, she was on television for 4 months continuously, every single day, speaking on the Srimad Bhagavad Gita. So these are just a few of her accomplishments, and we are so honored and fortunate to have her with us today. And without taking more time, I would like to invite Mataji and speak to us. Welcome, Hare Krishna Mataji. Dandavat Pranam. You have to unmute, Mataji. Yeah, I would rectify for you that in Pakistan, I've given more than, I've been there twice as a preacher, and I've given more than, I stayed for 25 days at a stretch just two years back. I'd gone for 10 days, but I had to stay for 25 days at a stretch. And I gave more than 45 lectures in those 25 days. Okay, that's a big correction. Okay. And no glorification, self-glorifications. It was all Guru Maharaj mercy that I was, Krishna gave me the opportunity to please my Guru Maharaj and Srila Prabhupada. And there is, I was listening earlier when you people were talking that I'm doing serial wise, and I have reached 16th chapter. We've done it serial wise. We did not disturb that. But in the middle, I've been taking different topics as well. I was taking Srila Prabhupada, 15 minutes with Srila Prabhupada every day. And then we started with that. I've turned into 1 hour lecture every Saturday now. Srila Prabhupada, glorifications of Srila Prabhupada. And then we are doing a 16th chapter just to break the monotony in between. I do take some topics like hope, some success, happiness, anger. These topics, they come up in the middle. So I just break the monotony. But we are on the 16th chapter now, and it's very interesting. The 16th chapter is very interesting with demonic qualities and the divine qualities. But as you all are doing the second chapter is in itself a gist of whole Bhagavad Gita. So second chapter comprises everything what will go in detail in the forward lessons, in the forward shlokas, in the forward verses. So you are, like you said, you're on the 9th shloka, from the 9th onwards. So 9th shloka is what Sanjay Uvacha, and Sanjay is telling Dhritarashtra. Sanjay is the medium through which Dhritarashtra is getting all the knowledge. And I try to speak in English or Hindi. What do you want me to speak in? In both languages. Okay, mixture, English. Yeah. Okay, I'll do that. So Sanjay is actually, he is telling Dhritarashtra, what Dhritarashtra ko sab bata rahe hain ki kya ho raha hai, what is the scenario and what is going to happen, because Dhritarashtra is very worried. And in his heart, he has the guilt. He knows कि उसके बेटे और वो धर्म के रास्ते पर नहीं है. And Pandavas are all on the righteous path. And so when Pandavas are on the righteous path, it's bound that Krishna is with them, it's there. And in the Dharam Kshetra, Kurukshetra, the first verse in itself of Bhagavad Gita, it expresses the anxiety in the heart of Dhritarashtra, that what will happen, because the sthan is Dharam ka sthan, Kurukshetra is Dharam ka sthan, and it will, of course, Tabi kaha gaya, Rup Goswami said, stay in the place of pilgrimage. The 5 angas of bhakti is, one is stay in the sthan, jahan par jo Tirath ka sthan ho. So Kurukshetra Tirath ka sthan hai. And Kurukshetra ki bahut mahima hai. And there is the war is going to be fought. So that is why Dhritarashtra is very worried. So now Sanjay is telling him, I'll just read the translation by Srila Prabhupada, the word meaning and translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of the enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. So this must have given a little bit of happiness to Dhritarashtra, because Sanjay is telling now that Arjuna is very much
he's gone into a morose kind of, बड़ा sad हो गया. Arjun is in anxiety now, and Arjun says, I don't want to fight. मैं युद्ध नहीं करना चाहता. And he's telling Govinda, I shall not fight. So भगवान को गोविंदा कह रहा है, ना युत्सया इति गोविंदम उक्तवा तुचिना बभूवः. So he says, I'm not going to fight now. So now this must have given big happiness to Dhritarashtra. But अब आगे संजय बताने जा रहे हैं कि ऋषिकेशा, what did Krishna said then? What did Krishna did? So he says, Tamuvacha Rishikesha Prasahanim Bharata Sanyorubhyar Madhye Vishidantamidam Vacha. O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. And वो संजय बता रहे हैं कि भगवान जो है उस समय he is smiling. So Krishna is all the time smiling. जैसी भी situation हो, he is smiling. So he is telling us in a way that we should be smiling in all the situations, because we should not worry, because Krishna is with us and he is with Arjuna. So there is no matter, उसको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है. मैं हमेशा एक कथा है गुरबाणी में, मैंने गुरुद्वारे में सुनी थी ये वाली, कि जब दुर्योधन और कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन आए हैं, युद्ध होने वाला है, और दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए हैं. भगवान ने बुलाया इनफैक्ट दोनों को, एंड भगवान ने ऑप्शंस रखी है उनके आगे. एंड कृष्णा इज लाइंग डाउन, अपने कक्ष में लेटे हुए हैं. ही डज एवरीथिंग विद, भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लीला होती है, कुछ ना कुछ रीजन होता है. ही डज नॉट डू एनीथिंग विदाउट रीजन. एंड भगवद गीता सेज नथिंग हैपेंस विदाउट रीजन. बिना रीजन के इस दुनिया में कुछ नहीं होता. हर चीज के पीछे रीजन है. भगवान हर लीला के पीछे कोई रीजन है. एंड देन कृष्णा इज लाइंग डाउन, एंड वहां पर अर्जुन और दुर्योधन दोनों आते हैं. दुर्योधन एज अ मैटर इज अहंकारी, अहंकार से भरा है. वो भगवान के सर की ओर खड़ा हो जाता है. अर्जुन सेवक है, अर्जुन सेवा के भाव में रहता है. अर्जुन भगवान के चरणों की ओर खड़ा होता है. सो दिस इज again, this signifies that if you want to become a devotee, you should be at the feet, lotus feet of Krishna. अहंकार नहीं होना चाहिए, दुर्योधन नहीं बनना है. So Duryodhan, he comes in and he stands there, and भगवान लेटे हैं, आंखें बंद हैं, and he is just smiling away. और उसी समय आंखें खोलते हैं तो देखते हैं दुर्योधन जो है वो सर की ओर खड़ा है, and he is there. और सीधा आंखें कहाँ पहले पड़ती हैं? चरणों के साथ. जैसे आंखें खुलेंगी, there you can see in front. So there is Arjuna. तो पहली आंखें अर्जुन पर पड़ी है, और फिर ऊपर करा तो देखा दुर्योधन है. और भगवान ने दो ऑप्शंस रख दी. एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता, बिना किसी शस्त्र अस्त्र के साथ. युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, पर इन अ वे करूंगा सिर्फ सारथी के रूप में, निहत्ता सारथी. कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा. दूसरी ओर ऑप्शन में रखा, he said, एक और ये, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना, पूरी मेरी नारायणी सेना जो लाखों लाखों सैनिकों से सुसज्जित है और सारे शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित है. नारायणी सेना है, और उनके पास जो शस्त्र अस्त्र है वो भी दिव्य होंगे. तो दोनों के आगे ऑप्शन रख दी. एंड अर्जुन बीइंग वेरी हम्बल गिव्स द, कई शास्त्र कहते हैं कि शस्त्र कहते हैं, कई स्क्रिप्चर्स में आता है कि दिस इज अर्जुन टुक द फर्स्ट ऑप्शन, but then it says here that Duryodhan was given the first chance. So दुर्योधन ने पहला चांस अवसर मिला. दुर्योधन को भगवान ने ऑप्शन सामने आई तो दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन कहता है मैं निहत्ता सारथी लेकर क्या करूंगा, मैं निहत्ता सारथी मेरे किसी काम का नहीं है. मुझे तो क्या चाहिए? नारायणी सेना चाहिए. सारथी तो मेरे पास अनेकों अनेक है. आई डोंट नीड अ सारथी. तो भगवान ने कहा तथास्तु. भगवान ने उसी समय तथास्तु कहा, और दुर्योधन बहुत ही खुशी से फूला नहीं समाया और कक्ष से चला गया, क्योंकि वो सो हैप्पी. व्हाई वाज ही सो हैप्पी? बिकॉज ही थॉट दैट उसके पास तो इतनी सेना ऑलरेडी है, एंड नाउ ही हैज गॉट ऑल द मोर नारायणी सेना इवन. सो नाउ देयर इज नो चांस ऑफ हिम टू लूज द बैटल. ही इज ऑलरेडी वन इट. वो तो ये सोच रहा है कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, और वो ही लीव्स द रूम. अब सामने अर्जुन खड़ा है, और अर्जुन अभी भी बड़ा ही परेशान सा खड़ा है. तो भगवान अर्जुन की ओर देखते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो? तो अर्जुन कहता है, ऑप्शन पहले तो दुर्योधन को दे दिया कि वो चूज कर ले
पर अगर आपको चूज कर लेता तो हमारा क्या होता? तो भगवान ने एक वर्ड बोला, एक लाइन बोली, he said, अगर मैं उसको बुद्धि देता तो वो मुझे चूज करता, मैंने उसको बुद्धि ही नहीं दी कि वो मुझे चूज करे. So now Krishna revealed this, all the intelligence to a devotee comes from him. To every person, every human being, the intelligence जो विवेक है वो भगवान से आ रहा है. तो भगवान जैसी हमारी इच्छा होती है वैसा विवेक देते हैं. जैसा हम अगर भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं कि हम उनकी ओर चले जाएं. और अगर हम भगवान से दूर जाना चाहते हैं तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं कि हम उनसे दूर हो जाएं. So that happened. Arjun and Pandav never wanted to leave Krishna for a moment even. They always wanted to be with Krishna. So भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी, ऐसा ही उनके मन में भाव दिया. और दुर्योधन भगवान से दूर जाना चाहता था. He never liked Krishna. वो भगवान को पसंद ही नहीं करता है. So वो दूर, भगवान से दूर है. तो भगवान ने उसको ऐसी ही बुद्धि दी कि वो भगवान से और दूर हो जाए. तो दिस इज देयर कि भगवान बुद्धि देते हैं. और यहाँ पर 10वें श्लोक में यही आ रहा है कि कृष्णा स्माइलिंगली, ही इज वेरी मच स्माइलिंग इन द मिड्स ऑफ द वॉर. और फिर उन्होंने अर्जुन जो बिल्कुल ही इस समय युद्ध ना करने के लिए डिप्रेशन में है कि युद्ध नहीं करना चाहता, ही इज इन लॉट ऑफ सैडनेस. अर्जुन जो है ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन. तो भगवान अर्जुन से अब क्या बोलते हैं? सो अर्जुन से कहते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अशौचमनावश्चस्त्वं प्रज. तो ये कह रहे हैं प्रज्ञावादंश्च भाष्यसे. तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. अब भगवान वाइज, विजडम वाले व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि who is wise? They are wise those who don't lament for neither for the living nor for the dead. They do their duty while speaking learned words. And अर्जुन जो है बड़े ही, भगवान कहते हैं बड़े पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, बड़ी ही ऐसी बातें कर रहे हो जो they are filled with lot of knowledge कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं खून से सना राज्य नहीं चाहता. He says मुझे मेरी I don't want such kind of राज्य. He is of that mood now. तो पर भगवान कहते हैं कि जो वाइज है, जो विवेक है जिनके पास, वो लैमेंट नहीं, शोक नहीं करते हैं, ना मृत्यु जिनकी हो गई है उनके लिए और ना ही जो जीवित हैं उनके लिए. क्योंकि भगवान गीता में आगे जाके इसको डिस्क्राइब और ज्यादा elaborately, he'll do it in the 12th chapter also. He says, यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्त मान्य सम प्रिय. ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो शोक नहीं करता है, जो बहुत हर्षित नहीं होता, बहुत खुश नहीं हो जाता कुछ मिलने पर, और बहुत शोक से नहीं भर जाता, कुछ लैमेंट नहीं करता है कुछ खोने पर, और ना ही उसको कोई इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की. यो ना हर्षति न द्वेषति, ना किसी से द्वेष करता है. सो भगवान को वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता जो किसी से द्वेष करे. द्वेष इज डीप काइंड ऑफ हेटरेड, ईर्ष्या. Krishna does not like. He does not like people to be jealous of each other. He likes harmony. He likes peace. He likes compassion, daya. भगवान को ये सब अच्छा लगता है. So he says here, कि do not you're mourning for what is not worthy of grief. तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो इसके worthy नहीं है. So Prabhupada writes here one thing. The Lord said, you are talking like a learned man. But you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither the living nor in the dead condition. So अब भगवान जो ज्ञान है, आत्मा और शरीर का ज्ञान, ये अध्याय बहुत important है because this gives the knowledge, basic knowledge. Who are we? Why are we born? And where we have to go. So here Prabhupada has given one thing in the purport. This is the most important thing. He says कि भगवान ये अर्जुन से समझा रहे हैं कि शरीर और आत्मा का डिफरेंस जानो. आत्मा के लिए श्रेयस्कर क्या है और शरीर जो है वो सिर्फ he says
any stage of the body. जो wisdom वाले wise हैं, they don't lament for the body, for the any stage of the body, and neither in the living or not in the dead condition. तो इस शरीर तो मिट्टी का है. गुरबाणी कहती है कि माटी का क्या मोल है स्वामी, मानस की गत एही. माटी का कोई मूल्य नहीं होता है, माटी की कोई वैल्यू नहीं है मिट्टी की. और जो शरीर है हमारा, ये मिट्टी है, चाहे इसको दफना दो चाहे जला दो, इसने मिट्टी होना है. सो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं. ये वैल्यू सेल्फ क्रिएटेड है. हम सोचते हैं ओ मैं, वी रिमेन पफ्ड अप लाइक दुर्योधन, ओ आई एम दिस आई एम दैट. व्हेन वी ऐड आई टू अस, हमारे अपने नाम के आगे इतने सारे आई लगा लेते हैं, मी माइन आई. सो दिस इज देयर कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आई एम सच अ बिग थिंग, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ मदर, आई एम अ हाउसवाइफ, आई डू दिस, आई डू दैट. एंड देन ये सारा क्या है? दिस इज अगेन मी, मेरा. ये हमारे को अहंकार लाता है और ये दुर्योधन जैसा है. सो हमें दुर्योधन नहीं बनना है. दुर्योधन नारायणी सेना लेकर खुश हो गया था. सो नारायणी सेना इज व्हाट? इस भौतिक जगत की चीजें. वी शुड नॉट बी हैप्पी विद दैट कि हमें अगर ये भौतिक चीजें मिल जाएं तो हम पफ्ड अप हो जाते हैं. बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा अच्छा घर है, बड़ा अच्छा we have a big house, we have a big car, we have all these facilities, so we become like Duryodhan जब हम puffed up होते हैं. And we are serving. It is not wrong to have these things, but when we are actually serving ourselves with these things and not serving Krishna with these things, then we are into the category of Duryodhana. But when we have every facility in our house, every facility what we acquire, what we have, if we serve Krishna with that, then we are no more, we are not Duryodhanas. हम तब दुर्योधन नहीं है. So अहंकार जो है वो दुर्योधन जैसा है, puffed up है. So one should not be that. That's what Prabhupada mentions here. कि body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. तो तभी गुरबाणी ने कहा माटी का क्या मोल है स्वामी, मानस की गत एही. हमारी गति यही है. So ultimately we will die. We all will die. So we will become मिट्टी. So इसलिए हमें कोई बनता ही नहीं हमारा कि हम बहुत अहंकार करें. And even Alexander, when he left this material world, he had acquired almost conquered the whole world. And when he had conquered the whole world and he was about to die, what he told is, उसने अपने सेवकों को क्या बोला कि मेरे जो हाथ हैं कफन से बाहर रखना, क्योंकि दुनिया ये देखे कि मैं खाली हाथ गया हूं. और दूसरा इस साइड मेरा जो कफन है जो बरियल के लिए जाएगा, तो जो उठाएंगे इसको वो सब वो होने चाहिए जो मेरे डॉक्टर्स थे, वैद्य थे, जिन्होंने मेरा इलाज किया. कि दुनिया ये भी देखे कि कभी कोई डॉक्टर मुझे बचा नहीं पाया, कोई वैद्य मुझे बचा नहीं पाया है. तो इसीलिए कौन इस संसार में आए तो सबसे बड़ा भगवान है. तो भगवान की इच्छा के सामने व्यक्ति कुछ नहीं है. So that is what Prabhupada is writing here. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. So इस material body को किसी भी condition में भगवान रखें, कैसा भी रखें, हमें उससे चिंता करनी ही नहीं है. We should not be worried about it. We should be more worried कि मैंने अपनी आत्मा को भोजन दिया कि नहीं दिया, मैंने अपनी आत्मा के लिए कार्य किया कि नहीं किया. और आत्मा का भोजन है, जीवा पर पकता है, कानों से खाया जाता है. जैसे अपने शरीर के लिए भोजन हम किचन में बनाते हैं और जी मुंह से खाते हैं और पेट में पचाते हैं और पूरी एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाती है. पर ऐसे ही जो आत्मा का भोजन है वो हम पकाते हैं अपनी जीवा पर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हम अपनी जीवा पर पकाते हैं महामंत्र के रूप में, और इसको हम खाते हैं अपने कानों के द्वारा, और इसको पचाते हैं हृदय में. हृदय में ये भोजन पचता है क्योंकि हृदय की शुद्धता इंपॉर्टेंट है. कैसे पता चलता है कि ये पच गया? आप कहोगे जीवा पर पका लिया, महामंत्र जप कर लिया, कानों से खा लिया, सुन लिया, कानों से सुन रहे हैं, एक एक शब्द को सुनना है जो हम बोलते हैं, कानों से सुन लिया,
पर पचा ये किसने देखा? ये कैसे पता चलेगा कि ये खाना डाइजेस्ट हो गया हमारा, कि भगवान के नाम का खाना जो है ये डाइजेस्ट हुआ है? तो हृदय में पचता है। कैसे पचता है? जब आपके अंदर से अनर्थ भाग जाए, जब आपके अंदर से अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब निकलना शुरू हो जाए, ये भाग जाए, तो तब हमारा भोजन जो है, कानों से जो हम खा रहे हैं वो पच रहा है, नहीं तो वो पच नहीं रहा है। अगर अभी भी हमें बहुत अहंकार है, बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत हमारे अंदर लस्टी डिजायर्स हैं, आगे जाके भगवान बताएंगे दिस इज इनसटाइबल लस्ट पीपल हैव। सो दीज डिजायर्स, आकांक्षाएं, इच्छाएं जो हैं ये हमें इस संसार में फंसा कर रखेंगे। तो अगर ये इच्छाएं अभी है, आकांक्षाएं हैं, तो देन वी आर स्टिल, हमारा भोजन जो है वो पच नहीं रहा। जो भोजन हमारा जो हाजमा है भी खराब है, सो इनडाइजेशन है अभी हम। तो इनडाइजेशन विल रेक्टिफाई एज वी चैंट नाइसली। जितना हम जप अच्छे से करेंगे, जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सो दैट एड्स ऑन टू आवर, ये हमारे को ये ऐड होता है हमारी भक्ति में, साधना में, and then the anarthas they run away. So that's what Prabhupada is talking about, that the material body is of no consequence. Isko to mitti hona hai, it has to vanquish one day, but the more important is the soul. तो soul को उसका भोजन देना ज्यादा important है। अर्जुन को भगवान यही ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन गुडाकेश है, अर्जुन is a learned in the sense वो अज्ञानता में नहीं है, पर ये सब लीला हो रही है भगवान की, ये सब हमारे लिए हो रहा है। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. अब भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, मैं परम आत्मा हूं, मैं भी हमेशा रहता हूं और तुम्हारी आत्मा भी हमेशा रहती है। ये राजा जितने यहाँ खड़े हैं तुम देख रहे हो अर्जुन, ये भी हमेशा रहेंगे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, मैं ना रहा हूं, एंड ये सब राजा ना रहे हैं, और इन फ्यूचर ऑल्सो ये सब रहेंगे। देह का अंत होगा, आत्मा का अंत कभी नहीं होगा। सो इन अ वे कृष्णा इज टेलिंग कि मैं परम आत्मा हूं और तुम आत्मा हो, तुम सब जो गुण है तुम्हारी आत्मा में वो मेरे जैसे ही गुण है जो मुझ में है। और प्रभुपाद यहाँ पर पर्पट्स में हमेशा शास्त्रों में से एविडेंस देते हैं, क्योंकि जो श्रुति शास्त्र है इनकी कसौटी पर स्पिरिचुअल जो इंजंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। So that's why Srila Prabhupada always gives the evidences from the Katha Upanishad, Shvetashwara Upanishad, the Chandogya Upanishad, different Upanishads and Puranas. So Prabhupada वहां से evidence देते हैं, कह रहे हैं कि इन कथा उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situations according to individual work and reaction of work. The Supreme Personality of Godhead is also by his plenary portions alive in the heart of every living entity. हर जीवा के हृदय में भगवान वास कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। ये श्वेताश्वतर उपनिषद और कथा उपनिषद इनमें भी ये वर्णन आता है कि भगवान ही मेंटेनर है सारे इनन्यूमरेबल एंटिटीज, जितने भी योनियां हैं सबके मेंटेनर भगवान है। एंड उन in the terms of their different situations according to individual work and reaction of work. जिस भी योनि में जो जीव आया है वो अपने कर्मों के अनुसार आया है, वो अपने कर्मों के रिएक्शन के अनुसार आया है, और भगवान उस जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। And then the same Vedic truth is given to Arjun is to be given to all persons in the world. अब भगवान सब पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ये ज्ञान हम तक आ रहा है अर्जुन के माध्यम से। So Arjun is what? Arjun is the ideal for us. अर्जुन हमारा आइडियल है। अब भगवान सबसे एक important, one of the very important verses उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। The 13th verse is very important because it relates to us. हमारी देह की चर्चा हो रही है, हमारे शरीर की चर्चा होने जा रही है। देहनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्त स्त्रीधीरस्त्र नामो हिते। भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देह, ये जो हमारी देह है ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, इसमें निरंतर चेंजेस होते हैं। हम खुद देख रहे हैं हमारी आत्मा वही है, बचपन से लेके आज तक हमारी आत्मा वही है। हम 30 साल 40 साल 20 साल व्हाटएवर 50 साल जो एज हमारी हो गई है, but our soul has not changed, the body has changed, body has had body में there are so many changes have happened over the period of years. He says here, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth, बचपन था, फिर youth आया, youth से middle age and then the old age, and the soul similarly passes into another body at the time of death. So जैसे ये आत्मा ने अलग अलग स्टेजेस पार करी हैं, ये आत्मा ने बचपन से जवानी में आई, जवानी से बुढ़ापे में आई, and then it'll leave the body ultimately. So ऐसे ही जब it is another change now she's taking up, कि वो जो शरीर जो अब बूढ़ा हो गया है, जो वृद्ध हो गया है, उस शरीर को ये त्याग देगी। जो डिजीज हो गया है, कोई व्याधि आ गई है, कोई कुछ हो गया है, उस देह को त्याग कर ये नया देह ले लेगी। So it will leave that body and go into the next body. So a sober person is not bewildered by such a change. जो धीर है, जो सोबर है, जो धीर कहा गया है, जिसके अंदर पेशेंस है, जो वाइज है, जो ये जानता है, वो इससे विचलित नहीं होता है। क्योंकि अर्जुन विचलित हो रहा है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, बिकॉज अर्जुन सोच रहा है कि उसके युद्ध करने से उसके ये भाई बंधु गुरु पितामह ये मारे जाएंगे, तो वो युद्ध नहीं करना चाहता है। तो भगवान उसको ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देह सबको त्यागना है और इन सबको भी देह त्यागना है। So Prabhupada writes it, he elaborates here in the purport. He says, this individual soul finally changes the body at the death and transmigrates to another body, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual. So अगर हमारा कर्म जो होंगे, जो भक्तिमय कर्म होंगे, हम भगवान का नाम जपेंगे, तो हमारा अगला देह स्पिरिचुअल होगा, नहीं तो मटेरियल होगा, और निम्न योनियों वाला हो सकता है। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो अगला देह है वो निम्न योनियों में चला जाएगा। हम पशु पक्षी पेड़ इन योनियों में चले जाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा, आगे चलकर भगवान जब बताएंगे, तीसरे अध्याय में भी चर्चा आएगी कौन सा कर्म करना है। अभी तो यही बता रहे हैं, कृष्णा इज जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज गिविंग द ग्लिम्स ऑफ होल ऑफ भगवद गीता इन द सेकंड चैप्टर। So second chapter को कहा गया summary, contents of Gita summarized, गीता का सार है। But then Krishna is giving you a glimpse, कुछ आपको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे चलकर बहुत elaborate वर्णन करने वाले हैं। He'll tell you elaborately कि क्या करने से क्या होता है, क्या सोचने से हमारी चेतना कैसी हो जाती है। अभी आजकल जैसे हम 16वां अध्याय कर रहे हैं, तो 16वें अध्याय में भगवान ने चर्चा शुरू की पहले डिवाइन क्वालिटीज से, डिवाइन गुण बता दिए, उसके बाद और कितने ही श्लोकों में अभी तक डेमोनॉइक क्वालिटीज की चर्चा कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि कलयुग में लोगों में डेमोनॉइक क्वालिटीज ज्यादा हैं, लोगों में डेमोनॉइक गुण अवगुण जो हैं वो भरे हुए हैं। सो कृष्णा न्यू दिस कि जैसे ही मैं जाऊंगा कलयुग शुरू हो जाएगा, एंड कलयुग में पीपल विल बी ऑल द मोर इनटू वाइसेस, उनके अंदर बुरी आदतें होंगी। तो इसीलिए ज्यादा एम्फोसिस ही गेव ऑन दी अवगुणस, ऑन दी डेमोनॉइक क्वालिटीज, कि ये डेमोनॉइक क्वालिटीज होती है, इनसे बच के रहना है, इनसे आपको कैसे अपने आप को निकालना है। सो ही इज गिविंग ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर अभी तो यही चर्चा कर रहे हैं कि जो सोबर व्यक्ति है, जिसकी चेतना में भगवान, जो धीर है, जो पेशेंस वाला है, जो इंटेलिजेंट है, वाइज है, वो बिविल्डर नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। सो किसी भी सिचुएशन में भगवान आगे कहेंगे कि विचलित नहीं होना है, डोंट गेट बिविल्डर, बी फोकस्ड। जो व्यक्ति जप करता है, जो भगवान का नाम लेता है,
वो फोकस्ड रहता है. सो फोकस, कॉन्सेंट्रेशन लेवल, फोकस ऑन कृष्णा, ये सब जपा से बढ़ता है. जितना जप करेंगे उतना भगवान के साथ जुड़ेंगे. सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हरे कृष्ण महामंत्र इज द इट्स नॉट द मंत्र, इट्स द महामंत्र. सो सब मंत्रों का राजा है. जब इस मंत्र का जप करते हैं वी गेट कनेक्टेड टू कृष्णा. तब हम सोबर रहते हैं, बिविल्डर नहीं होंगे. वी हैव टू प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स एंड देन कृष्णा हेल्प्स अस. सबसे बड़ी बात है कि कृष्णा हेल्प करते हैं. हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. ओनली जब हम भगवान देखते हैं ये व्यक्ति मेरे लिए प्रयास कर रहा है, देन ही रियली हेल्प्स अस. ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस. जैसे वो अर्जुन के लिए है. ही इज देयर विद अर्जुन, ही इज फॉर अर्जुन. और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन की सेवा कर रहे हैं. आप सबने बहुत बार कथा सुनी होगी कि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ की यात्रा पर थे, तो साउथ की यात्रा में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो मंदिर के बाहर खड़ा होकर ऊंचे ऊंचे श्लोकों का वर्णन कर रहा है, ऊंचे ऊंचे श्लोक गा रहा है भगवत गीता के. और उसके आसपास झुंड खड़ा है लोगों का, और वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो रो रहा है. तो चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति के पास चले गए और उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो. तो वो कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि भगवत गीता के श्लोकों का रोज उच्चारण करना है और मैं वो कर रहा हूं. तो कहते हैं फिर तुम रो क्यों रहे हो और ये लोग क्यों हंस रहे हैं तुम पर. तो वो बताता है कि मेरा जो उच्चारण है वो सही नहीं है. मैं बहुत बड़ा कोई पंडित नहीं हूं, मुझसे सही उच्चारण संस्कृत का श्लोकों का नहीं होता है. ये लोग मेरे इस जो उच्चारण है उस पर मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं ये लोग. तो उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है ये बात, तो फिर रोते क्यों हो. तो कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये मेरा मजाक कर रहे हैं, मेरे का उच्चारण अच्छा नहीं है. मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि जो कृष्णा है वो अर्जुन की सेवा कर रहे हैं. भगवत गीता के इन श्लोकों के उच्चारण करते करते मेरे गुरु ने मुझे ये आदेश दिया था. तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ ये उच्चारण करते करते कि कृष्ण जो भगवान है, पूरी सृष्टि के मालिक हैं, कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सारे ही ब्रह्मांड का, तीनों लोकों का स्वामी हूं. तो ये तीनों लोकों के स्वामी होकर एक अर्जुन, एक पांडव के पुत्र अर्जुन, जो उनका एक मित्र सखा है और भक्त है, उसके लिए रथ हाँक रहे हैं, उसकी नौकरी कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं. इसीलिए मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं. तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया और उसे कहा कि असलियत में गीता तुम ही समझे हो. सो भगवत गीता गिव्स अस अ रियलाइजेशन ऑल द टाइम. जैसे उसके गुरु ने उसके एक आदेश दिया कि तुम्हें भगवत गीता के श्लोकों को रोज पढ़ना है और ऊंचा ऊंचा उच्चारण करना है, जैसी भी तुम्हें संस्कृत आती हो, इट डज नॉट मैटर. उसके भाव ने उसको शुद्ध कर दिया. गुरु के आदेश के अनुसार कार्य किया और उसका भाव ही उसे शुद्ध कर गया. तो इसलिए बोनाफाइड गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुरु के कहे अनुसार उसने उच्चारण किया और वो उच्चारण ने ही उसको इतना शुद्ध कर दिया कि उसे रियलाइजेशन हो गया अबाउट हूम, अबाउट दैट कृष्णा इज सर्व्स हिज ओन डिवोटीज. सर्विस, भगवान सेवा कर रहे हैं अपने भक्तों की. अर्जुन सेवा करना चाहता है भगवान की और भगवान सेवा कर रहे हैं अर्जुन की. सो दिस इज देयर कि भगवान कहते हैं मैं इतना ऋणी हो जाता हूं अपने भक्तों का कि मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूं. सो दिस इज कृष्णा. तो ये रियलाइजेशन हुआ. चैतन्य महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि सही में भगवत गीता तुम ही समझे हो. सो भगवत गीता को जानने के लिए बहुत बड़े हमें स्कॉलर नहीं होना है, हमें बहुत बड़े प्रख्यात पंडित नहीं बनना है. ये नहीं कि मुझे संस्कृत अच्छे से आनी चाहिए तभी मैं श्लोक पढ़ूंगा, नहीं. यू जस्ट गॉट टू हैव अ कनेक्शन टू कृष्णा. गुरु के आदेशानुसार जो कार्य किया जाता है वो अपने आप में ही आपको भगवान से मिला देगा. कब भगवान की कृपा हो जाएगी आपको भी ज्ञान नहीं होगा. सिर्फ गुरु के आदेश को मानने से ही
कृपा आ जाती है अपने आप। पर बोनाफाइड गुरु ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु राह चलता किसी को गुरु बना लिया, सेल्फ स्टाइल्ड कोई भी कह रहा है मैं गुरु हूँ। आजकल तो बहुत सारे ऐसे गुरु जेल में भी हैं। तो ऐसे गुरुओं से तो बचना है। सो कैसे पता चलता है कि असली गुरु कौन है? सो पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। सो गुरु जानकर करो कि गुरु जो है वो कितना अपने भक्तों को भगवान से जोड़ते हैं। जो अपने से जोड़ते हैं, जो पाखंडी वो हैं जो अपने के साथ जोड़ते हैं, those who want to exploit you। पर द असली गुरु वो है जो आपको कृष्ण से जोड़ता है, जो कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहता है, कृष्ण के बारे में आपको ज्ञान देता है, जो भगवान की चर्चा करता है। गुरबाणी में आता है, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। अमृत है वाणी कृष्ण तुम्हारी, हरि तुम्हारी वाणी जो है वो अमृत है, अमृत के तुल्य है भगवान तुम्हारी वाणी। जो तुम कहते हो भगवान वो अमृत है। सुन सुन होवे परमगत मेरी, जितना ज्यादा मैं तुम्हारी बारे में सुनता हूँ, तुम्हारी चर्चा करता हूँ, सुनता हूँ, मेरी परम गति हो जाती है। सो दिस इज व्हाट कृष्णा हैज गिवन। वाणी भगवान की है, चर्चा भगवान की है, और परम गति हमारी है। सिर्फ कहने और सुनने मात्र से अगर इतना कुछ मिल जाता है, तो जब भगवान सामने होंगे तो क्या होगा? सो दिस इज देयर कि सिर्फ भगवान के बारे में सुनना और कहने से ही हमारी मुक्ति निश्चित है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। यही बात, ये दूसरा अध्याय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज टेकिंग अस इनटू द डीपर पार्ट ऑफ द भगवद गीता नाउ। आप एक एक भगवद गीता के जो आगे के चैप्टर्स आने वाले हैं उनका आप जिस्ट फॉर्म में एक सार के समरी के रूप में यहाँ समझ रहे हो। तो यही श्लोक आगे ज्यादा डीपर मीनिंग के साथ आएंगे। तो जब हमें इनका अच्छे से पता होगा तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो जैसे नॉवल पढ़ते हैं हम, नॉवल के पीछे एक समरी लिखी होती है 4 लाइनों में, तो आप और ज्यादा उत्साह से उस नॉवल को पढ़ते हैं। अभी तो नॉवल पढ़े बहुत साल बीत गए हैं, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में आई हैड रेड सो मेनी, बट देन वी यूज्ड टू ऑलवेज फर्स्ट व्हेन वी यूज्ड टू बाय वी यूज्ड टू लुक एट द बैक, एंड वहां हम पढ़ते थे कि उसके बारे में जो लिखा गया है समराइज, देन वो इंटरेस्टिंग लगता था, देन वी यूज्ड टू बाय द नॉवल और पिक अप फ्रॉम द लाइब्रेरी। सो दैट इज हाउ भगवान इस समय टीजर दे रहे हैं। द सेकेंड चैप्टर इज दैट ही इज गिविंग अस द ट्रेलर कि आप ये समरी देख लो, एंड देन यू विल बी इंट्रीग्ड, आप देन यू वांट टू रीड द डीपली द भगवद गीता। सो डेप्थ में जाना बहुत ही हमारे लिए, इट इज बिकॉज इट इज वेरी गुड फॉर अस। हमें कहाँ जाना है एक्चुअली? भगवत धाम लौटना है। सो उसके बारे में कैसे समझेंगे? भगवान खुद समझाएंगे। आगे के अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि अर्जुन ऐसे स्थान की खोज करो जहां जाकर तुम्हें वापस ना आना पड़े। और फिर पहले ये कहते हैं खोज करो, फिर कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो, खोज भी मत करो, मैं ही बता देता हूँ। कहते हैं वो कौन सा धाम है? वो स्थान मेरा घर है। जब तुम वापस मेरे घर आ जाओगे, अपने घर आ जाओगे, तुम्हें फिर कोई चिंता नहीं सताएगी, फिर वापस नहीं जाना पड़ेगा। सो कृष्णा सेज वो धाम मेरा धाम है। So we should be actually heading for that. And as I said, the class is till 5. It's 4:45. I'll be happy to take any question answers also. If Vanita, if Vishakha Mataji, if there are any questions, you can go ahead with them also. Can I ask you, ma'am? Yes, please. Yeah, I'm Renuka. I've joined from Calcutta. My friend Anuradha has sent me the link. So Okay. thank you so much. You're welcome. Yeah. My question is, I somehow get confused when we say कि आत्मा तो प्योर है, हम जो भी कार्य करते हैं वो देह से करते हैं, आत्मा प्योर होती है, मतलब आत्मा के साथ हमारा कोई कर्म साथ नहीं चलता। Okay. लेकिन जब हम कहते हैं अगला जन्म हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमारे कर्म है, तो फिर भुगतता कौन है? मतलब आत्मा तो प्योर ही निकली ना, बॉडी तो जल गई, बॉडी तो खत्म है। Yeah. So why we have to, when we say we have to suffer in our next birth because of our deeds, then Yeah. who is suffering now? I'll tell you. You see, आपको भी भगवद गीता शुरू करा है, go deeper into it.
आत्मा और शरीर, आत्मा को देह क्यों मिला है? The first reason why the soul had to take a body. Because The it soul has to had reach to to its destination. Yeah. yes, to reach its destination. But अगर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो किया नहीं तो फिर तो सफरिंग करनी पड़ेगी ना। गुरबानी में और भागवतम में चर्चा आती है। भागवतम की कथा तो लंबी हो जाएगी मुझे बताने में। I'll just sum up it in 4 lines from the Granth Sahib. It says Okay. अंत काल, because Krishna says जो अंत काल में मेरा नाम लेगा, यम यम वापी स्मरणम, कृष्णा says जैसे जैसे अंत काल में जो मेरा नाम लेगा वो मेरे धाम आएगा। लास्ट मोमेंट में मेरा नाम लेना पड़ेगा। अब आप And कहोगे he दैट्स नॉट also डिफिकल्ट। says, नहीं, he says अगर पूरे समय नहीं लिया तो मैं लास्ट में याद ही नहीं आऊंगा। That That's also right. he says. आपने आंसर खुद ही दे दिया। That's right. Because he said कि अगर मेरे को पूरा जीवन लास्ट मिनट में वही याद रख सकेगा जिसने सारा जीवन मुझे याद रखा। That's right. Because मृत्यु किसी की पता ही नहीं है कब आएगी, कब कोई मर जाएगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए भगवान बहुत चालाक है। He is the cleverest of all. And then he says कि you have to remember me all the time, never forget me. That's right. पर जब हम आत्मा ये देह लेती है, आत्मा ये प्रॉमिस करती है जब माँ के गर्भ में भी होती है। जब हम माँ के गर्भ में देह को हमने लिया ही था, अभी हम कुछ घंटों क्षणों के ही हुए थे, और फिर जैसे जैसे माँ के देह में पनप रहे थे वूम में, वी प्रॉमिस टू गॉड, हम उल्टे लटके हुए थे, हमारे हाथ जुड़े हुए थे। जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसके दोनों हाथ क्लैप्स्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। ये गुरबाणी में आता है। 300 साल पहले, 350 साल पहले ग्रंथ साहिब लिखा गया, 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम लिखा गया। श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले ही ये सब कुछ बता दिया गया कि बच्चा माँ के गर्भ में कैसा होगा। गुरबानी में भी कह दिया कि गर्भ में हाथ देकर रखा। गर्भ में सिर्फ एक ही भगवान है जो हमें हाथ देकर रखते हैं, नहीं तो गर्भ में कोई बच्चा नहीं जीवित रह सकता। इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा बच्चा कैसे रहता है, गोल हुआ हुआ, हाथ जुड़े हुए, उल्टा लटका हुआ। भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि मुझे इस नर्क से निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपका भक्त बनूंगा। वो जानता है वो सजा काटने आ रहा है, उसको सजा मिली है। हम यहाँ पर आए, हम बहुत खुश होते हैं कि भौतिक जगत में आए हैं एंजॉय करने, हमें सजा मिली हुई है। हम सारे ही कैदी हैं यहाँ। कोई A क्लास जेल में है, कोई B क्लास में है, कोई C क्लास जेल में है, अकॉर्डिंग टू आवर कर्मस। तो अब आकर जैसे ही माँ की गर्भ से निकले हम भूल गए, माया ने पकड़ लिया हमें और हम भूल गए हमें क्या करना था। माया आ गई अनेक रिश्तेदारों के रूप में, मासी, मासर, ताया, ताई, चाचा, चाची, बुआ, ये सब ने हमें गले से लगा लिया। किसी ने हमें, अब वहां जहां हम इतना नर्क भोग रहे थे माँ की गर्भ में, कभी कीड़े काट रहे थे, कभी हम बेहोश हो रहे थे, पर जैसे ही बाहर निकले सबने हमें फूलों की तरह रखा। एंड देन वी फॉरगॉट। चाहे एक गरीब के घर में भी बच्चा जन्म लेता है, वो भी इतनी खुशी मनाता है, वो भी अपने बच्चे को माँ जो है कष्ट नहीं होने देती, तो वो भी माया में चला जाता है, भूल जाती है। वो भी नहीं बच्चे को याद दिलाती कि तुझे भगवान को याद करना है, तू भगवान के लिए आया है इस संसार में। गुरबाणी कहती है कि मनुष्य देह मिला ही है कि गोविंद को मिलने की बारी है, पर तुम भूल गए। और फिर जैसे कर्म करेंगे वैसा देह अगला मिलेगा। कर्म करेंगे तो आत्मा जो प्योर है, बट आत्मा फंसी हुई है इस शरीर में। हम बद्ध जीव हैं, आत्मा प्योर है 100%, बट आत्मा जो है प्योर है, इसीलिए वो भगवान के लिए तरसती है। प्योर है तो इसीलिए उसको शांति मिलती है भगवान की चर्चा में। अगर इम्प्योर होती तो उसको रावण की चर्चा करने में या कंस की चर्चा करते तो शांति मिलती, पर शांति मिलती है तो भगवान की चर्चा में, क्योंकि प्योर है। तो इसीलिए हम वो भूल गए भगवान को और इस माया में फंस गए संसार की। तो अब माया में फंसे हैं तो इसको भुगतान देना पड़ेगा। आत्मा बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, हम कंडीशनड है, हम बधे हुए हैं, तो हमें अगला देह लेना पड़ता है। और हमारे पास एक शरीर नहीं है, 2 शरीर है। ये शरीर तो जल गया, आपने कहा ठीक है, जल गया, दफना दिया, दैट्स राइट, बट देयर इज अनदर बॉडी वी हैव गॉट अ सटल बॉडी। मन भगवान बताएंगे अभी गीता में, that is made of mind, intelligence and false ego. मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं। यस, सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह दिखता नहीं है और हमारी आत्मा उस सूक्ष्म देह में कैद है।
आत्मा रहती हृदय में है, पर वो कैद है सूक्ष्म देह में। जब तक सूक्ष्म देह खत्म नहीं होता है, आत्मा रिलीज नहीं होती है। ग्रॉस बॉडी तो अपने आप मर जाएगी, पर वो जो सूक्ष्म देह है वो अपने आप नहीं मरता है। ये तो हर पल मर रही है, ये तो एवरी मोमेंट दिस बॉडी इज डाइंग, अल्टीमेटली इट विल डाई वन डे। But what about the subtle body? Subtle body does not die on its own. It has to be literally murdered. It has to be killed, you know. So मन वो को subtle body है। control में करना है, या वो सटल बॉडी है जो हमारे कर्मों को लेके चलती है फिर। yes, सटल बॉडी में जितने भी हम कर्म करते हैं वो संस्कार बनकर निहित हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं। ठीक है। और अगला देह जो है वो मन, वही वाला मन लेकर उस देह में जाएगा। और देखते हैं हम दो बच्चे एक ही माँ बाप के, एक बड़ा शांत है और एक बड़ा ही नॉटी है या बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड है। तो एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, पर अपना स्वभाव अपने साथ लाए, वो अपना पूर्व जन्मों के कर्म को साथ लाए, अपने स्वभाव को साथ लाए। इसीलिए दोनों के स्वभाव में फर्क है। तो गुरबाणी कहती है, अंतकाल जो सिमरे लक्ष्मी ऐसी चिंता में, जो मरे सर्प योनि वलवल उतरे। उस आत्मा को सांप का देह लेना पड़ जाता है जो लक्ष्मी, जो धनी सिमरती हुई चली गई संसार से। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारा बताया है कि कौन कौन क्या सोच रहा होता है, किस चेतना में होता है, उसको कौन सा देह मिलेगा। सो दिस इज देयर, दैट्स राइट। ठीक है, yeah, thank you so much. You're welcome. Yes, any other question? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ जी माता जी, अभी आपने कहा कि ये सेटल बॉडी जो है, मन बुद्धि अहंकार, उसे हमें मर्डर करना होता है, वी हैव टू किल इट। सो उसकी प्रोसेस आप थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे? How to murder it? Be in the association of devotees, they'll murder it. Be in the association of devotees and chant the holy name. जितना जप करेंगे मन वश में आएगा। भगवान कहते हैं मन को वश में करना है, ज्ञान और वैराग्य की कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है। ये आराम से छुरी से नहीं काम होगा, इसका मर्डर कुल्हाड़ी से होता है। भगवान ने बहुत शार्प कहा है कि इट्स कुल्हाड़ी, ही यूज द वर्ड कुल्हाड़ी, कुठार। सो ही सेज ज्ञान और वैराग्य की कुठार से इसका मर्डर करो। सो ज्ञान, कृष्णा से आई विल गिव यू, मेरी कृपा से ज्ञान आएगा एंड मेरी ही कृपा से तुम्हारे पास वैराग्य भी आएगा। सो ध्रुव को वैराग्य दे दिया, पूरा सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे दिया, एंड साथ में उसको उससे आसक्ति छीन ली, अटैचमेंट छीन ली, तो वो आसक्त नहीं हुआ। राज्य कर रहा है, किंग है, बट ही इज नॉट अटैच्ड टू हिज किंगडम। सो दैट इज व्हाट कृष्णा सेज, आई विल गिव यू एवरीथिंग बट देन आई विल टेक अवे, आई विल मेक यू वैराग्य, आई विल गिव यू वैराग्य। सो दैट इज सब कुछ होते हुए, फैमिली होते हुए भी you will not be attached to it. That is there. So be in the association of devotees, so you'll be able to murder your suksham deha. Thank you so much. Nice Hare question. Krishna. Hari Bol. Dandavad Pranam Mataji. Dhanwad ji. Actually, we felt really inspiring and fresh after Yes. listening to you. Thank you. We understood that how this concept means chanting has a lot of importance in our life. You see, chanting के ऊपर मैंने अभी एक session भी लिया था. That is on the YouTube right now also. Chanting is the soul of bhakti. You can just go through that, and chanting is most important. Chanting के साथ साथ chanting को boost कहाँ से मिलता है? जैसे मैंने कहा, गुरु के कहे अनुसार कार्य करने से, क्योंकि सिर्फ chanting chanting तो करना ही करना है, but how your chanting is boosted, how it is like it becomes so interesting. जब गुरु की कृपा होती है, the chanting in itself, it will help us. जैसे हम गुरु के ऑर्डर्स का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे गुरु के आदेश के अनुसार वो ब्राह्मण जो, वो व्यक्ति जो था श्लोक पढ़ रहा है, तो उसको रियलाइजेशन हो गई। सो हम भी रोज भगवत गीता का कवर देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस हैव एवर रियलाइज्ड दैट सी कृष्णा इज सर्विंग अर्जुना? It's very difficult to get these realizations, though they are every day we are seeing them. But then this is there कि chanting अच्छी हो जाती है। Sincere chanting किसको कहते हैं? जब हम गुरु के ऑर्डर को पालन कर रहे होते हैं। And जैसे these days we are doing according to the order of the Guru Maharaj and Srila Prabhupada, श्रीमद् भागवतम मैराथन। So रात दिन हम यही सोचते हैं कि श्रीमद् भागवतम कैसे दूसरों के घर में जाए, कैसे उनको मिले, कैसे और जीव भी हैं फायदा उठाएं। तो when we are thinking of others,
it's natural we'll get the benefit. Krishna says कि जो मेरे नाम का प्रचार दूसरों को करता है उससे ज्यादा कोई प्रिय ना हुआ है ना होगा. तो जो क्योंकि प्रचार कर रहा है, जो ये सोच रहा है कि मैं कैसे दूसरों को भागवतम पहुंचाऊं, कैसे कन्विंस करूं औरों को भी, या किसी को दान में दूं, या किसी को कन्विंस करूं कि he should also go ahead with the Bhagavatam in his house. So this is Krishna himself. Srimad Bhagavatam is not different to Krishna. तो जब हम ये सोचते हैं तो भगवान ये देखते हैं ये व्यक्ति रात दिन मेरा चिंतन कर रहा है, and then he blesses that person. So this is how we can get the blessings. और ऐसा करने से हमारा जपा अपने आप अच्छा हो जाता है, बिकॉज भगवान की कृपा हर जगह चाहिए. So जपा आज कैसे, जैसे मेरे I've got on the WhatsApp nearly like 700 people with me. All they came in contact with me during this lockdown. I started giving online classes at a regular basis, which I was not doing earlier because I was traveling a lot. So I only used to give online classes when I was traveling somewhere, giving lectures. I used to share them online. But now I just focused on the online. And then I made, people came, like you are asking questions. I'm live on the Facebook as well right now and on the YouTube also. So people have given me, lots of questions have come up there also. So they are on my WhatsApp also. They question me since morning like 3:30, everything starts with me till night 11:30. Someone or the other is, many of them message me early in the morning at 3:30 itself. When they are doing the Mangala Aarti, they start chanting. They message me that we have started our chanting. And I just take a glimpse of it and look at it. And I know many are there. So this is there that this came up with me because my Guru Maharaj had said, I want you to give lectures. I want you to preach. And I took it on me. Yes, that's my duty, my responsibility. And in lockdown also, this thing I thought over, let's do it. Let's do it online every day. Without fail, every day I was giving 2 lectures a day earlier. So this is how we have to take it. And then Srimad Bhagavatam Marathon came up. I didn't know it would be coming up. That was not my goal. But then Guru Maharaj said that you should go ahead with the Srimad Bhagavatam Marathon. I said, why not, Guru Maharaj? As you say. And when I started that marathon with my devotees, like with these new devotees, those who are already doing Mangala Aarti, chanting in the Brahmurata, and they are offering Bhoga, they welcome the Bhagavatam also with full awe and reverence. They did it. They showed it. Guru Maharaj was very happy when he saw some of the video clips these people were sending me, these devotees. They honored the Bhagavatam with full reverence, like Krishna himself entered their homes. And Krishna has really blessed them now. So this is how, and their chanting is improved. Many have written me the realizations. Yesterday night, somebody sent me a realization that for 20 years, she was suffering from some disease, and that problem was not going away like that. And she says, since the lockdown, she started chanting, and the last 2 months, she's disease-free. Oh. She does not have that disease anymore. I've got that clip with me on the WhatsApp. It said that many have sent me these messages. Many have come with it. And from far off places like New Zealand, from Australia, they say that we have been we never knew the Brahmurat was so beautiful. They said, we always thought we cannot get up. And now we all are getting up. One lady, she called me, she says, I get up at 3. My husband says, sleep a bit later. She says, no, I feel like I want to get up and chant. And I do it. And I don't feel tired. I feel more energetic. So I've got many like these with me. And they have done the Bhagavatam, like not 1 or 2 Bhagavatams. Some of them have done like 4 or 5 Bhagavatam sets. They have distributed to their friends. They have given surprise gifts to their friends. Yesterday, somebody, he's on my group only. He called me up and he said, I'm sending 2 Bhagavatam sets to 2 of my friends, and they are surprise gifts. So when it reaches them, I want them to know that it is from my side. They will be surprised from ISKCON who is sending them this. So I said, I will let them know. So this is how people are really, this is how you become dear to Krishna. When you serve the orders of your Guru Maharaj, then you become dear to Krishna. And then Srimad Bhagavatam is non-different to Krishna. So it is coming to the homes,
सो चैंटिंग अच्छा हो जाता है अगर हम भगवान को याद रखेंगे, किसी भी भाव से याद रखेंगे, हमारा जपा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जप करने का भाव आएगा, फीलिंग आएगी कि मुझे जप करना है। जितना ज्यादा भगवान के बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा क्लोजनेस आएगी, उतना ज्यादा जपा स्ट्रांग होगा। जप में बहुत शक्ति है, जपा इज दी शक्ति, इट इज दी पावर। कृष्णा हैज गिवन हिज पावर टू अस एंड कृष्णा सेज मैंने पूरे अपनी शक्ति डाली है अपने दिव्य नामों में। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति दी है एंड हिज नेम्स आर नॉट डिफरेंट टू हिम। ही सेज माय नेम्स आर नॉट डिफरेंट टू मी। अभिन्न है मेरा नाम और मेरा रूप, गुण, लीला सब अभिन्न है। So hope it's 5 o'clock. I'm not taking more time now. Is there because these topics are never ending. I can go on and on for hours and hours. So any other question? A last question perhaps? धन्यवाद माता जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बट मेरे को आप सुन के आज इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही आते रहें, हमें बताते रहें। मैं एक छोटी सी एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैं कुछ चैंटिंग में करने बैठती हूँ तो मेरे इतना उसमें आता क्यों नहीं है? मतलब मुझे अच्छा पहले ये कर लूँ फिर चैंटिंग करूंगी, अच्छा ये कर लूँ फिर चैंटिंग करूंगी, और वो एक टाइम ऐसा होता है कि वो छूट जाता है। ये मेरे साथ क्यों होता है? बहुत कोशिश करती हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आप चैंटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते ना। चैंटिंग को, कृष्णा को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कृष्णा भी कहते हैं इफ यू आर नॉट गिविंग मी इम्पोर्टेंस सो आई विल आल्सो नॉट लेट यू चैंट नाउ माय नेम। इफ यू गिव हिम द इम्पोर्टेंस, यस यू आर द प्राइम, मैं सबसे पहले आपका ही नाम जपूंगी, मुझे और कुछ नहीं करना है, तो फर्स्ट थिंग इज आई विल चैंट योर नेम। तो मुझे पहला काम है जप करना है। तो सुबह उठते ही पहला काम, चाहे 2 माला करो चाहे 3 करो, पर सुबह उठते ही पहला काम है कि नहा धो के पहले जप करो, कि मैं कुछ और भी करने से पहले मुझे चैंटिंग करना है। तो जब आप और चीजों के लिए भगवान को पीछे कर देते हो तो भगवान फिर और पीछे कर देते हैं आपको। वो कहते हैं कि अब और भी पीछे हो जाओ, आपके दिमाग में फिर और चीजें डाल देते हैं, अब ये कर लो, अब वो कर लो। फिर आप सोचते हो अब आराम से बैठ के करूंगी, वो टाइम ही नहीं आएगा, शाम हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बिकॉज तो माता जी आप मुझे आशीर्वाद देंगे, बस मैं ये आपकी बात में मानूं और मैं शुरू करूं। मेरा पहला काम यही हो, मेरा सबसे आखिरी काम यही होता है, सुबह से शुरू करके। Yeah, that is why in my group, the first thing was I preached in the lockdown was getting up early in the Brahm Muhurat and do your chanting. सबसे पहला जरूरी काम है भगवान का नाम, इसके बाद बाकी और काम। तो जब भगवान का नाम लिया, कई लोग तो ये प्रण ले लेते हैं कि मैं इतना नाम जप लूंगा, 4 माला कर लूंगा तभी कुछ खाऊंगा। प्रभुपाद said that. प्रभुपाद ने किसी को सिखाया कि 16 माला जप उससे होता नहीं था, तो प्रभुपाद ने कहा ऐसा करो, 4 माला बिना ब्रेकफास्ट तब करना जब 4 माला कर लोगे, लंच तब करना जब 4 माला कर लोगे, शाम को 5 बजे स्नैक्स खाना है, मन कर रहा है कुछ खाने का, तब खाना जब 4 माला कर लोगे, और डिनर तब खाना जब 4 माला कर लोगे। बिफोर एवरी मील, कहते हैं ना मील से पहले दवाई खानी है, तो बिफोर एवरी मील जस्ट टेक अ वॉक ऑफ 4 राउंड्स। आधा घंटा लगता है 4 राउंड में, तो तभी खाना जब मैं वो माला कर लूं 4। 16 माला कब हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। So that's how Prabhupada taught. Simple. He made everything very simple. So अगर हम ऐसा करेंगे तो of course we will be able to do our chanting. So that's it. We end the class here. Thank you for inviting. Yeah, thank you. Thank you so much, Mataji. We don't want to let you go, actually. We don't want this to end. इतना This आनंद is आया ना, बहुत ज्यादा so, माता जी। Thank you, thank you. it's so nectarian. And now your group must, those who all are online today on the Zoom, they should all come forward and ask Vinita for a Bhagavatam set. And she will come to me, and then I will send you with the blessings from Shri Shri Radha Parthasarthi. The deity is installed by Srila Prabhupada himself. So we'll get the Bhagavatam from there. And you all can contact Vishaka and she will let me know. So please come forward, ask your friends, family, everybody. And if you can't donate, and if anybody needs it also, if really, Vishaka, if anybody is in need and they can't afford it, we can help them. We can help them, somebody to sponsor a Bhagavatam for them.
There are many people who are doing it, and those who are helping us. And we've brought smiles to many people, those who couldn't literally afford it. And those who can, please order one and ask your friends. And if you can't give the full amount, you can pay some donation. Maybe we'll club it. If somebody wants to pay 2,000, 3,000, like 4,000, so donate karne ke liye, we club the two people together and we make one Bhagavatam set and we donate it to the needy ones. So please come forward. Vinita will, she'll help you. Vishakha can help you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Some ladies had this feeling that we will not be able to take care of the Srimad Bhagavatam. इसमें काफी विधि विधान होगा, इसलिए हम नहीं लेना चाह रहे हैं, घबरा रहे हैं. So would you shed some light on that? Yeah. It's not, ऐसा नहीं है. Srimad Bhagavatam बड़ा simple scripture है. It is not, it's Krishna himself, but it is like उसमें awe and reverence तो जरूर है. Respect we do for Bhagavad Gita also. और भागवतम ऐसा नहीं है, उसमें लीलाएं हैं भगवान की और भगवान के डिवोटीज की. And it's very interesting and very informative. इसको प्रभुपाद ने कहा वैदिक encyclopedia. It's a Vedic encyclopedia. इसमें आपको सब चीजों के उत्तर मिलेंगे क्योंकि इसमें भगवान का नाम, रूप, गुण और लीलाएं हैं. तो लीलाओं से हम समझते हैं. विदाउट लीला, जैसे मैंने आपको स्टोरीज बताई हैं, these are the stories of श्रीमद् भागवतम. तभी हमें भगवान समझ आते हैं जब भगवान की लीला समझ आती है. सो हर लीला के पीछे कोई ना कोई भगवान का कारण रहा है. He's given us a message. Like पूतना को मारा है भगवान ने, अनेक राक्षसों का वध किया. तो आप जानेंगे कि पूतना का वध किया. पूतना, मैंने अभी सारी क्लासेस की थी अपने के साथ. सो एवरी डीमन हैड रिप्रेजेंट समथिंग. और वो भागवतम बताती है कि हर डीमन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. So they are it's very interesting and very informative. और हमारे लिए गुरु महाराज कहते हैं कि भागवतम को छूने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है. भागवतम गुड फॉर्चून लाती है घर में. इस कोविड टाइम में तो वी रियली नीड दिस. भागवतम हमारे घर में, इट ब्रिंग्स गुड फॉर्चून, इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, इट ब्रिंग्स, कहते हैं कि हमारे को जो कमी है, गुड हेल्थ, इवन it brings everything. Just by touching it, one becomes purified. So I would request you all, please get a Bhagavatam. अगर आपके घर में नहीं है, this is the right moment. We should welcome Krishna in our homes and ask others also to welcome Krishna. Yes. माता जी, अगर एक ही अध्याय पूरा सेट ना मंगाएं, सिर्फ एक ही पहला अध्याय मंगाएं तो वो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. कुछ नहीं होगा. The full canto, the लीलाएं तो आगे है. पहला कैंटो तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन में जाता है. अच्छा जी. उसमें तो बहुत कम है. सो फर्स्ट कैंटो से तो पूरा सेट में कोई दिक्कत नहीं है. इट इज नॉट दैट आप घबराते हैं ना कि 18 किताबें होंगी, हम पढ़ेंगे कैसे. हाँ जी. नहीं, ऐसा मुश्किल नहीं है. आप लाइब्रेरी में अपने उसको बुक शेल्फ में रख दीजिए. पहले जिस कैंटो को पढ़ते हैं उसको अपने ऑल्टर में भगवान के सामने रख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं वहां पर. रोज दिन में 2 पेज, एटलीस्ट 2 पेज या 2 श्लोक इसको जरूर पढ़ें. और देन soon we will be starting Srimad Bhagavatam also after the 18th chapter. मैं बीच में लेती रहती हूँ भागवतम की. even Vishakha will be also taking some part of it. so आप इकट्ठे बैठ के भी पढ़ सकते हैं और इतना मुश्किल नहीं है. हम डरते हैं 18 किताबें हैं, बट हर किताब का अपना सिग्निफिकेंस है. जैसे आपका मन करता है ये देखने के लिए कौन कौन से नर्क बनाए हैं भगवान ने, यमराज, किन किन नरकों की चर्चा है, तो 5वां कैंटो उठाएंगे तो उसमें डिफरेंट नरकों की चर्चा है. 12वां कैंटो उठाएंगे तो कलयुग की चर्चा आ जाएगी. इसलिए भागवतम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है. इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो आपके जो बच्चे भी घर में हैं, यंगस्टर्स, दे विल आल्सो लव इट, लव रीडिंग इट. So I would request you all to please get a Bhagavatam to purify your homes, purify yourself. हरे कृष्णा माता जी. आज आपका हरे लाइव कृष्णा. आपको मिले, बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. Hare Krishna. So we end up the session. Thank you very much. Thank you for your time, Mataji. And this is not the last. We will keep on requesting you to please come again and inspire us. I am myself so inspired.
to start rereading the Srimad Bhagavatam. And जो भी आपने भागवतम की glories बताई, it has rejuvenated me in spite of hearing it earlier before. It You is are always dear to so me. nice. Whenever you say, I'll be there for your service. You're very dear to me. Hari Bol. हरी बोल मत Thank you so much. Hari Bol. Dandavat pranam. Dandavat pranam. Danvat pranam. Pancha So, kalpataru. Vancha kalpataru vacha sindhu bhayevacha patitanam bhavnebhyo Patitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Shila Prabhupada ki Grace jai. Radhika Jai. Grace Radhika Kripa Mata Ji ki Jai. जय सब devotees की जय, जो online जुड़े सबकी जय. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you. Hare Krishna. थैंक So, यू वनीता thank you, माता जी Vanita ji. इनवाइटिंग है थैंक यू जी Thank you, Vanita, so much. It was so enlightening, so enlightening. so the way she was explaining about Srimad Bhagavatam, I would like to share about devotees. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koe, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं कि लव मात्र साधु संग, लव मतलब माइक्रो सेकेंड का भी अगर टाइम किसी प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड के साथ मिल जाए, सर्व सिद्धि होए. You get purified so many times more, you get energized you so many times more just by the association of a pure devotee. And I think that's what we all are feeling, because Radhika Kripa Mataji has put in more than 25 years of her life chanting the holy names, reading the Srimad Bhagavatam, reading the Bhagavad Gita, talking about the Srimad Bhagavatam, talking about the Bhagavad Gita, and in difficult places like Pakistan. So that's why we are feeling so happy after hearing her. And like she was saying, you can just get the impetus to chant by being in the association of devotees. अकेले पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन भक्तों के संग में राई की तरह हो जाता है ये मुश्किल से मुश्किल काम भक्ति योग का. So साधु संग में बने रहिए. क्लासेस के लिए टाइम निकालना जरूरी है, इतना मुश्किल नहीं है. You can see how punctual she was. She came dot at 4, left exactly at 5. So it's not very difficult to take 1 hour out of your time. And these classes are being organized for this reason only, so that all of us are struggling with our japa, with our everyday life, mental anxiety. So this devotee association is the medicine for that. So don't miss these opportunities. These are not ordinary classes like your dance class or yoga class or any such class. These are classes for the soul. जैसे वो आज बता रही थी. This is food for the soul. जो कहीं नहीं मिल रहा है, unfortunately. किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी नहीं मिल रहा है. So thank you all for finding time today, and please chant your rounds. As she said, try to get up early in the morning and do your japa. We are there to help. We have online groups that wake up in the morning. You can just join in the group to feel enthusiastic. कितने लोग उठे हुए हैं, मैं भी इनके साथ जाप करूं. And please read the Srimad Bhagavatam. If you don't have it, now is the time to invite the Srimad Bhagavatam into your house. Purushottam Mass is coming. Purusho Mein Uttam, that's the Mass that is coming from 18th September. It's the best time to get the set of the Srimad Bhagavatam in your house. Like she said, you don't have to be a Pandit. You don't have to be scared that you may advanced kaise padungi. It's not philosophy like Bhagavad Gita. It is stories, leelaen, about so many varieties of concepts. So you can even read it like a bedtime story to your children. Like she was saying कि बच्चों को बहुत मजा आता है. इसमें बहुत सारी ऐसे cantos हैं which have very nice and soothing stories, appealing. So if you are receiving gifts, Srimad Bhagavatam as gifts from someone, make sure that you also donate for somebody else. अगर आप कहीं से किसी कोई आपको डोनेट कर रहा है, एज अ गिफ्ट कर रहा है, आप भी किसी को जरूर श्रीमद् भागवतम गिफ्ट करें. So on that note,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We just say the closing prayers. Who would like to say after me? Maybe Ishita? Ishita, you would like to repeat after me the closing prayers? Ekam Shastram. The others can also repeat, but by keeping yourselves muted. Ekam Shastram. Ekam Shastram. Devaki Putra Geetam. Devaki Putra Geetam. Eko Devo. Eko Devo. Devaki Putra Eva. Devaki Putra Eva. Eko Mantras. Eko Mantras. Tasya Namani Yani. Tasya Namani Yani. Karmapi Ekam. Karmapi Ekam. Tasya Devasya Seva. Tasya Devasya Seva. Tvameva Mata cha Pita Tvameva. Tvameva Mata cha Pita Tvameva. Tvameva Bandhu cha Sakha Tvameva. Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva. Tvameva Vidya Dravinam Tvameva. Tvameva Vidya Dravinam Tvameva. Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Tvameva Sarva Mama Deva Deva. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Hare Paramatmane. Haraye Paramatmane. Pranata Kalesha Nashaya. Pranata Kalesha Nashaya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Vasudevam Sutam Devam. Vasudevam Sutam Devam. Kamsa Chanura Mardanam. Kansacharura Mardanam. Devaki Paramanandam. Devaki Paramanandam. Krishnam Vande Jagat Gurum. Krishnam Vande Jagadgurum. Katyayani Mahamaye. Katyayani Mahamaye. Mahayogini Adhishwari. Mahayogini Adhishwari. Nanda Gopa Sutam Devi. Nanda Gopam Sutam Devi. Patim me kurute namaha. Patim Kuru me Devaha. Patim me kurute namaha. Kurute Namaha. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Dasoham Krishna Tavasmi. Dasoham Krishna Tavasmi. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki. Jai. Srimad Bhagavatam ki. Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari 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 Bol. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna. Ji, will we be doing these shlokas again?